Hey guys, this is Aditya Kaushik. I have secured All India rank 375 in UPSC CSE 2025 and I'm here to answer your queries about history optional questions. Basically all the doubts which arise for people who are about to start with this optional or are in this optional. So I'm here to answer your questions. So let's start. Deal with vast syllabus. Well, this is the most fearful aspect which people think because the syllabus is never ending. It's like an ocean. आपने ancient खत्म की तो you feel like you feel relaxed. Then there is medieval. You are done with that. You move to modern, and after that there is world history. So it's a never-ending subject. Always something new will pop up. But again, that is the most beautiful part about this optional, that since it is giving you a plethora of syllabus, what you can do is systematically study the PYQs. The PYQs tell you that what all are the important areas out of this vast syllabus, vast ocean that you actually need to focus on. And if you notice, like for example, आप ancient India देखेंगे तो कोई भी political आपसे पूछा जाएगा कि इसका political हमें बताइए aspect. You see, most dynasties had the same political aspect. सो बस नाम लैंग्वेज रीजन के हिसाब से चेंज हो जाते थे. सो वॉट यू कैन डू इज क्रिएट टेम्पलेट्स. सो क्रिएटिंग टेम्पलेट्स रियली हेल्प यू टू डील विद द वास्टनेस ऑफ द सिलेबस. दूसरा PYQs, मैंने आपको शुरू में ही बताया वॉट थीम्स आर रिपीटेड ऑन द मोस्ट. दे कैन ईजिली हेल्प यू सिक्योर अ गुड चंक ऑफ marks. And then there are the outskirt topics. Recently, from like last 2-3 years, UPSC has been asking the outskirt topics which were not that prominent. That means, for example, in world history, a lot of emphasis is now given on the Cold War. In the ancient part, there is a lot of emphasis on the early medieval India. So these things will again pop up. But see, this is how the vastness of syllabus helps you. The more time you devote to the vastness, the more rewarding it will be. Many people I know, they ignore it. They ignore these aspects, the topics which I mentioned. So if you actually emphasize on these, it will be more rewarding for you. Vastness will actually help you clear this and score good. Next. Remember dates and facts. Well, this is something a non-history student will first ask me. How do you remember such thing? Whenever my people from my like my batchmates, my selected friends, or even people who are not into UPSC, when I tell them that I have history optional, the first question that comes to their mind is कि तुम्हें इतना सब कुछ याद कैसे रहता है, स्पेशली डेट्स एंड फैक्ट्स. तो एक ये मिसनोमर भी है कि हिस्ट्री ऑप्शनल इज़ अबाउट द, इट्स लाइक एक मिसनोमर मार्केट में हो गया कि ये KBC चल रहा है कि आपको एग्जैक्टली इस डेट पे ये हुआ था. है इम्पॉर्टेंट, क्रोनोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट हिस्ट्री ऑप्शनल में रादर देन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे आर चेकिंग योर एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन. हाउ यू आर एबल टू प्रोसेस द ट्रेंड्स, what was happening, why was it happening, the causes and the after effects. So they really want you to see the bigger picture rather than pinpointing at the dates. Not denying that dates are necessary, but you need not run after dates. अब हाँ, आप ये भी नहीं कर सकते कि बहुत बड़ी सी डेट है, like you cannot forget 1947, right? In world history you cannot forget 1832, the Charter Acts. In like you cannot forget the bigger timelines, like आप उसमें गए pre-history में, that is your Neolithic, Mesolithic and Paleolithic age. There are broad chunks of timeline. आप इतना ही याद रखिए. You need not go very specific in this timeline we have gotten this. So it's not that much needed. And in medieval, dates of important battles can be remembered, but not beyond that. You did not practice that much emphasis on dates. Always remember, history optional is there to check your analytical ability and how far you have understood the depth of the topic rather than the superficial knowledge, that is dates and facts. Facts automatically come. It's basically like आपको हमने एक स्क्रिप्ट दे दी, आपको एक मूवी आप देखते हैं तो आपको मूवी का जॉनर पता है, आपको थीम पता है, आपको क्या हो रहा है, देन ये स्पेसिफिक मोमेंट्स आप खुद ही याद होने लगते हैं विथ रिविजन. एंड आई वुड अगेन एम्फेसाइज कि ये इस पे ज़्यादा फोकस मत करिए, ये सेकेंडरी है. आप प्राइमरी सब्जेक्ट को समझिए, उसको डिसाइफर करिए, ये दे विल ऑटोमेटिकली फॉलो अप एंड ट्रस्ट मी, आपको सब याद रह जाता है. तो रिविजन इज द की. आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन.
Look at Robert Clive today. I believe this is a very dicey question, and like Robert Clive is someone, I mean, I might get hate for this, but what he did was in his professional aspect is something which deserves hate. He was a very corrupt official, very unethical official. It is okay. Those were the times. That was his policy. But when you look at his personality traits, if you have studied about the siege of Arcot, if you remember, he had a very small battalion and from very limited resources, and he actually motivated. He was a mere clerk, by the way. If you guys don't know, he was a clerk at that time, and he led an army of generals and soldiers that we will siege Arcot from the French, and he actually defeated the French. He used diplomacy in the Battle of Plassey. I know it was very unfair, but remember this year UPSC asked in the essay that the real art of war is defeating the enemy without actually fighting him. It's a quote by Sun Tzu from The Art of War, and I gave this example in my anecdote. So, professionally, what he did was very cowardly, was very corrupt, and no one in history can forget it. And even, in fact, even he was punished and trial. He was put on trial for the corruption he had did. So, destiny, he met his fate, but only from the individual traits. अगर आपको कभी भी आप demotivated feel करें, you have very less resources, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो just see this personality trait कि उसने इतने limited resources से, उसने प्लासी में भी उस पर बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लेकिन ही यूज दिस माइंड, ही यूज दिस प्रेजेंस ऑफ माइंड. तो आई बिलीव सिर्फ उसको आप इस एंगल से देखिएगा. प्लीज डोंट गो ऑन हिज प्रोफेशनल एस्पेक्ट, जस्ट सी हिज पर्सनल ट्रेट्स that you should always, even if you have the most limited resources, you can still come on the top provided you have will and like you have a foresight. Read Upinder Singh. Upinder Singh, I'll be very honest with you, I have studied, but I believe I have not completed it. But there are two aspects in Upinder Singh that how you should approach it. Pehla, I'll tell you from the mapping perspective. This year there was a question in the mapping which dealt with a Neolithic site in the Ladakh region. Most of us, we see Jammu and Kashmir, we see a Neolithic site. What will you go with? Gufrakal or Burzahom, right? But Upinder Singh mein, the mapping portion, the maps are so good that you should at least look at them. Most of the mapping content is readily available in the material provided by the teachers, but there are extra sites. Like your curiosity should spark that, oh, there is a site in Ladakh also. This could be asked. Likewise, there was a Mesolithic site asked just on the border above Rajasthan, like Gujarat Rajasthan's border. And this was again from Upinder Singh. So first aspect is ki please read Upinder Singh's mapping. After you are done with the core mapping part, you have done the PYQs of mapping, you have done what your faculty has taught you, then move on to Upinder Singh. Second, how to read Upinder Singh for your mains, especially for the optional. See, Upinder Singh has put immense research. In fact, I have had the opportunity to personally meet her also, as she was a faculty in the Department of History also, where I have done my MA from. And she's an immensely immensely intellectual person, like a scholar of history. So she has given us immense knowledge nuggets. But you need not read all of them, because why will you overflow your brain with so many facts? But it is a challenging task to read Upinder Singh in a go. But make sure you read like 3 to 4 pages every day. Like you have been taught about Chandragupta Maurya in your class, read the notes, revise it. Then during your free time, just take out 30 minutes and read Upinder Singh, like 5 to 6 pages on Chandragupta Maurya. Most of the information is in your notes, but again, focus on that Gupta example I gave you. Find those extra nuggets. Who knows, they might be asked in prelims also. So make sure you take some value nugget from your Upinder Singh and add it into your notes. It will definitely gain you extra half a mark per question. I'll move on to the next question. It's very interesting questions, I believe. Fall in love with historiography.
this is like, you really cannot be biased, I believe. You read Kalhana. Kalhana ने history source of history writing में historiography में यही लिखा है, you cannot be biased. So falling in love with historiography, I wouldn't suggest that for your fulfilling your debate aspect, like according to this historian. But for scoring marks in history optional, you really need to fall in love with historiography. I'll tell you how. See, historiography can be used in like three situations, I believe. First, if a question is about debate, अब debate है, like feudalism, very prominent debate in history optional. अब इसमें आप अपना व्यू लिख देंगे कि हाँ जी feudalism हो रहा था, feudal state था, vassal states थे, but क्या आपको लगता है are we really that qualified to actually put our views? No. This is where in debate oriented questions historiography increases your authenticity. तो बेसिकली हाउ टू फॉल इन लव, आपको पता है ये व्यू है, लाइक देयर वाज फ्यूडलिज्म, आपको दिख रहा है, लाइक यू स्टडीड एंड यू डिड योर एनालिसिस एंड यू बिलीव दैट देयर वाज फ्यूडलिज्म. सो सी द स्कॉलर्स हु वर प्रो फ्यूडलिज्म एंड उनके व्यूज देखिए एंड रिलेट टू देम, यू विल इंस्टेंटली पिक देम अप. ठीक है. दूसरा, बट देर शुड ऑलवेज बी अ काउंटर, देर इज थीसिस देन देर इज एंटी थीसिस. सो मेक श्योर कि हमेशा आप हिस्टोरियोग्राफी में do not keep, like, love should not be one sided, I believe. So don't always be like, biased towards one school of historiography debate questions में. Always look out for various aspects also. Second, how to, मतलब आप historiography ऐसे करिए, like suppose let's just example, for example you love something, you have read something, you have a very good fact, don't you feel like flexing it? I believe flexing is the right word these days, कि यार आई शुड यूज दिस, ड्रॉप दिस फैक्ट. आपके जीएस आंसर्स में भी यार मैंने वर्ल्ड बैंक का क्या ही अच्छा स्टैट पढ़ा है. दो स्टैट ड्रॉपिंग इज सेम लाइक हिस्टोरियोग्राफी, मतलब दैट इज द इक्विवेलेंट ऑफ ड्रॉपिंग हिस्टोरियोग्राफी इन योर आंसर्स इन द ऑप्शनल पेपर, स्पेशली हिस्ट्री. वॉट यू हैव टू डू इज, आपने कोई पॉइंट लिख दिया, अगर आपको एक हिस्टोरियन का नाम याद आ रहा है जिन्होंने इस पे किस टॉपिक पे बोला हुआ है, तो यूज इट टू जस्टिफाई योर स्टेटमेंट. मे बी पुट हिम और हर इन योर एग्जाम्पल. यू कैन डू दैट, राइट? सो ऑलवेज सी हिस्टोरियोग्राफी इज फ्लेक्सिंग, कि आपको इट विल गेन यू मोर मार्क्स, इट ब्रिंग्स लेजिटिमेसी. आप फैक्ट्स दूसरों के आगे क्यों बोलते हो, लोग आप पे, आपकी नॉलेज पे क्यों भरोसा करते हैं? बिकॉज लोग आपको ऑथेंटिक मानते हैं. तो जब आप ऑथेंटिक हिस्टोरियोग्राफी डालेंगे अपने आंसर्स में, व्हेन यू पुट इट, it creates a very good impression that this person has also a very scholarly side, because ultimately academicians ही हमारे papers check कर रहे हैं. So historiography should be used for flexing, like only when needed. Over flexing or excess of anything is bad. So आप इतना भी मत करिए कि अगर आपसे simple question पूछा है कि क्या था timeline, कैसे हो रहा था, you need not flex it, you need not drop historiography. But आप हमेशा याद रखिए, हिस्टोरियोग्राफी ब्रिंग्स ऑथेंटिसिटी. तो इफ़ इन ऑर्डर टू फॉल इन लव विथ हिस्टोरियोग्राफी, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि हर टॉपिक पे आप पे थोड़े थोड़े हिस्टोरियंस हों. इट इज़ ओके, देर आर मेनी माइंस्क्यूल टॉपिक्स, लाइक देर इज़ वर्ल्ड हिस्ट्री में तो उतनी ज़्यादा हिस्टोरियोग्राफी होती ही नहीं है. एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल इन मेडिवल देर आर होम्स, देर इज़ नो हिस्टोरियोग्राफी. आप नोट्स देखिए, ज़्यादा हिस्टोरियोग्राफी नहीं है. बट कोई बहुत बड़ा टॉपिक है लाइक चोलाज, उस पर हिस्टोरियोग्राफी होनी चाहिए. सो मेक श्योर व्हेन यू मेक योर नोट्स, आफ्टर यू आर डन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, आप सर्टन सेट्स ऑफ हिस्टोरियंस बना दीजिए. मैंने क्या बताया, आई रिपीट इन अ नटशेल. अगर डिबेट है तो प्लीज़ हैव ऑल सेट्स ऑफ हिस्टोरियंस, उनके व्यूज़. अगर कोई नॉर्मल जनरल टॉपिक है लाइक एग्रीकल्चर इन मुगल इंडिया, तो आप प्लीज़ मेंशन इरफान हबीब्स एग्रेरियन सिस्टम्स इन मुगल इंडिया. उनकी किताब है एंड इरफान हबीब ने उस पर काफ़ी रिसर्च की हुई है, गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ दैट एज. ठीक है. तो यू कैन actually supplement your views with these. So this is how you fall in love with historiography. I really believe that again I'll repeat Kalhan, that I believe history is pure facts. So I really keep myself away. This is my personal opinion. I really keep myself away from any Bollywood historical movie, because that is purely entertainment. I believe history is about facts.
figures and like official records. So I really like, if you guys want to watch it, please go, but please see it from the point of view of leisure and entertainment. Don't take it by heart. ठीक है. आप तब आपको ऑप्शनल में तभी मार्क्स मिलेंगे व्हेन यू एक्चुअली रीड हिस्ट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फैक्ट्स, लाइक प्लेन फैक्ट्स. जो लिखा हुआ है हमें वहीं लिख के आना है. ठीक है. एंड आपके जो व्यूज़ हैं आप दे सकते हैं. अगेन, इससे पहला क्वेश्चन, फॉलोइंग इन लव विथ हिस्टोरियोग्राफी. अपने व्यूज़ मत देखिए. if you watch these movies, there is a high tendency कि you might create your own opinions and that will sabotage your optional. So my personal opinion is that I haven't watched these movies and I keep myself away from this kind of historical Bollywood genre. Let's move to the next question. Well, this is like, I mean, we don't believe like something apart from history option. I would like to add कि हमें पता नहीं है. 3-4 साल पहले ही AI का हमने नाम भी नहीं इतना सुना था. It wasn't that prevalent. अब it feels like we have actually walked into a revolution. It's the AI revolution. Everything has become AI. आप किसी भी चीज़ के आगे AI जोड़ दो, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. So why not increase your preparations value by using ChatGPT? I have extensively used ChatGPT. For example, I was reading some topic about modern India, XYZ topic. मुझे इग्नू का PDF मिला 30 पेज का. I don't have time. मेंस के बीच और प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच 2 से 2.5 महीने का टाइम, तो 2 महीने होते हैं. I don't have time कि मैं 30 पेज पढ़ूँ. उसमें से मैं कितने पॉइंट निकालूँ? 2-3 निकलेंगे क्योंकि नोट्स में सब रेडिली अवेलेबल है. तो वैल्यू एडिशन के लिए डू यू थिंक वेस्टिंग दिस मच टाइम इज लाइक एप्ट? नो. देयर कम्स दिस. I'll tell you how I used it. You can use it with your convenience. I'll tell you how I used it. मैंने वो 30 पेज का PDF इग्नू में डाला और सपोज आई एम रीडिंग दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसका वो मेरे पे पूरा PDF आ गया. तो जितने भी PYQs हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के UPSC ने पूछे हैं, मैं उन क्वेश्चंस को ChatGPT में पहले ही फीड कर देता था. एंड आई यूज्ड टू टेल ChatGPT कि एक बार इनको बहुत अच्छे से देख लो, लुक एट दिस एंड व्हाट दे आर आस्किंग. ठीक है. एंड देन मैंने वो PDF डाला एंड टेल मी इस PDF से तुम इस पे आंसर्स कैसे बनाते. स्ट्रिक्ट UPSC पैटर्न की मुझे इससे 7-8 पॉइंट चाहिए, इसके काउंटर डायमेंशन में 7-8 पॉइंट चाहिए. और अगेन हिस्टोरियोग्राफी, लेट्स रीटरेट टू इट. मैं ChatGPT को क्लियर इंस्ट्रक्शन देता था कि इसमें इफ़ यू सी एनी हिस्टोरियंस नेम प्लीज़ पॉइंट दैट आउट. वो 4-5-6 हिस्टोरियंस के नाम निकलेंगे. अब जो मुझे जेन्युइन लग रहा है, जो इज़ गोइंग विथ माई नॉलेज बेस, अगर डिबेट नहीं है तो डिबेट क्वेश्चन ये, जो मुझे सबसे इजी टू लर्न है मैं वो लर्न कर लेता था. तो फर्स्ट, समराइजिंग लार्ज डॉक्यूमेंट्स. दूसरा, यू कैन एक्चुअली लाइक यूज ChatGPT टू अ वेरी गुड एक्सटेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग टॉपिक्स लाइक आर्ट एंड कल्चर. अब देखिए, आर्ट एंड कल्चर में अनगिनत स्टाइल हैं. नगरा, वेसारा, द्रविड़, वो तो सिर्फ एंशंट में हो गया. अब मेडिवल में आइए तो भाई इलियास शाही डायनेस्टी, शर्की डायनेस्टी, जौनपुर, आपके विजयनगर, चोला, मुगल, दिल्ली सल्तनत में भी एवरी किंग हैज़, every dynasty has their own style of architecture. Like there are more than 20 styles of architecture. What do I do? मैं मटेरियल पढ़ने तो नहीं बैठूंगा. तो मैं GPT को इंस्ट्रक्शन देता था कि अगेन हिस्ट्री ऑप्शनल स्टैंडर्ड है. एक उसको रेफरेंस मैंने दे दिया नोट्स का, किसी टॉपर के नोट्स के या जो मटेरियल में नोट्स हैं वो मैंने डाल दिया कि देखो इतने पॉइंट्स तो मुझे चाहिए. ठीक है. तो नाउ व्हाट विल आई डू इज़ कि मैंने मान लीजिए नगरा, वेसारा, द्रविड़, द मोस्ट बेसिक एग्जाम्पल आई गिव यू. मैंने GPT को बोला देखो ये स्टैंडर्ड है, हिस्ट्री ऑप्शनल का स्टैंडर्ड है. मैंने बोला गिव मी ए टेबल ऑन द बेसिस ऑफ सेग्रीगेशंस, किस किस पे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और मुझे 8-9 पॉइंट्स हर पे दे दो. ठीक है. और लास्ट में अगेन हिस्टोरियोग्राफी अगर कुछ हुई है इन पे तो उस पर भी दे दो. तो ChatGPT क्या करेगा, एक टेबल बना देगा. एंड मैंने बस उसका टेबल का डॉक्यूमेंट निकाला, PDF बना दिया, दैट्स इट. तो जब आप पे लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्रोसेस है and you want to really segregate, like especially take out the difference, like comparison, please use ChatGPT. Thirdly, I believe I used to search a lot of historians, like why did the Rajputs lose to the Arab invasions. इस पे मुझे याद है, मुझे अच्छी जगह 2-3 हिस्टोरियन मिले थे नोट्स में. I
took a lot of research papers and मैंने बहुत उस पर मैंने आई एम्फोसाइज कि गिव मी हिस्टोरियंस एंड चैट जीपीटी वाज एबल टू गिव मी लाइक एटलीस्ट 7 to 8 historians with their different views. So you can also use it at as the last resort when you don't when you cannot find any content. So this is how I use ChatGPT. Well, there are 100 ways you can use it, but please do use it. That is my suggestion. It will help you cover the vastness. Again, repeating the first point, vastness. Identify sites in paper 1. आपको चलिए पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ. 4 साल से आई बिलीव पॉलिटिकल आ रहा था. इस साल मैं गया देने. बाय द वे 2024 के मीन्स में आई कुडंट गिव माई ऑप्शनल पेपर्स बिकॉज आई हैड गॉटन डेंगू. So this was my first time attempting the actual paper. I go to the exam hall and सबसे पहला सरप्राइज फिजिकल मैप आ गया. अब यार पूरे 4 साल पॉलिटिकल की पैपिंग मतलब 4 साल से पॉलिटिकल आ रहा है, पॉलिटिकल पे प्रैक्टिस किया है, बट ठीक है, चलो वी हैव टू फेस इट. सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज व्हाई आई गिव यू दिस इंसिडेंट कि देर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स. देर इज अ ग्रिड मेथड, very precise, but again it didn't work for me. I wasn't a grid person. I was more of a बार बार उस साइट को देखते रहो, उसके पास ऑब्जर्वेशंस निकालो. लाइक लेट्स जस्ट सपोज अगर मुझे यूपी के थोड़े से मतलब लखनऊ के थोड़े इस साइड पूर्वांचल साइड अगर कोई मेजोलिथिक साइट दिखी तो मैं वहाँ पे ना एक सेग्रीगेशन बना लेता था कि मेजोलिथिक साइट्स यहाँ पे क्या हो सकता है. महादारा, सराय नहार राय और 2-3 है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल. तो अब क्वेश्चन में अगर दे दिया कि साइट विथ साइंस ऑफ वॉरफेयर, मेसोलिथिक साइट विथ साइंस ऑफ वॉरफेयर एंड इट इज इन दैट रीजन, तो इट इज मोस्ट प्रोबेबली योर सराय नहर रहा है, क्योंकि वहाँ पे रिब्स में कुछ अवशेष हमें वेपन्स के मिले हैं, ठीक है, एक्सकवेशंस में. तो आई यूज टू डू जोनल मैपिंग कि ये जोन हो गया, यहाँ पे अगर कोई मेसोलिथिक साइट है तो मैंने नोट्स कैसे बनाए थे. कर्नाटका, लेट्स जस्ट सपोज अपर कर्नाटका हुंसगी, लोअर कर्नाटका XYZ साइट, राजस्थान अपर राजस्थान, मिडिल राजस्थान, ऐसे. अब इसमें भी स्पेसिफिक आ जाते हैं क्योंकि अपर राजस्थान या ईस्ट राजस्थान में या वेस्ट राजस्थान में देयर विल बी साइट्स विच आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर. सो व्हाट यू कैन डू इज कि अगर आपने राजस्थान का मैप देखा है तो उसमें एक ऐसे नॉब जाती है. अब मैं उसको अपना रेफरेंस पॉइंट बनाता था एंड आई यूज टू डिसाइड कि इफ़ दिस साइट इज़ वेरी क्लोज टू दिस रेफरेंस पॉइंट और वेरी फार, तो 2 साइट्स की अगर आपको करना है तो क्रिएट अ रेफरेंस पॉइंट. तो आई बिलीव जोनल मैपिंग रियली हेल्प मी. बाकी मोस्ट ऑफ द मैपिंग जो ये आपको हेडेक आएगा विल ओनली बी एन इशू टिल योर IVC. IVC के बाद थोड़ा ये कॉपर होड साइट्स हो जाएंगी आपकी, थोड़ी पेंटेड ग्रेवेयर साइट्स हो जाएंगी एंड मीजो, नियो, पेलियो, दैट्स इट. बाकी क्योंकि उसके बाद पॉलिटिकल हिस्ट्री यूजुअली स्टार्ट्स. तो अगर आपसे पूछा है कि यहाँ पे बुद्धा को जैसे इस साल निर्वाण कहाँ मिला था, महापरिनिर्वाण, यू नो इट्स अ फैक्ट. यू नो अगर वेस्ट बंगाल में इट्स अ टेराकोटा साइट और अ ट्रेड, मॉडर्न पोर्ट, इट इज़ चंद्रकेतुगढ़, ठीक है, गुप्ता में ताम्रलिप्ति, ठीक है. सो ऐसे आपको आइडेंटिफाई हो जाता है. पॉलिटिकल हिस्ट्री इज़ नॉट अ हेडिंग, बट ये जो मैंने आपको पहले टॉपिक्स बताया इनके लिए डू जोनल मैपिंग. एंड ऑल्सो फॉर मैपिंग वन मोर सजेशन, नेवर डू मैपिंग इन बल्क कि अब एक साथ सारी 30 साइटें करेंगे. क्रिएट SIP. बेसिकली आई हैव दिस SIP मेथड फॉर मैपिंग कि भैया डेली आई यूज टू डू 3 to 5 साइट्स किए. टेम्पलेट्स ऑलमोस्ट मीजोलिथिक में सबका सेम है, माइक्रोलिथ्स मिले हैं, ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स, ये वो थोड़ा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल्स हम उसकी तरफ बढ़ गए थे. ये जनरल पॉइंट्स है, बट अगर वहाँ कुछ स्पेसिफिक है तो याद रख लीजिए. ट्राई रिमेंबरिंग डिस्ट्रिक्ट, नहीं रह पाते इट्स ओके, बट आप ऐसे करिए कि 5 मीजोलिथिक साइट्स देखिए, मोस्ट ऑफ द साइट्स हैव द सेम कॉन्टेंट. उसके आगे लिख दे ये राजस्थान के इधर मिडिल में है, जस्ट राइट दैट, यहाँ ये मिला है. So daily do 5 sites and trust me over like 100 days you will have like 500 sites. And आधी sites आपको क्योंकि political history आपको already पता है. It's just a fight for like 100-120 sites. और also read do PYQs क्योंकि उससे ही आपके 12 से 13 सवाल उसी से हो जाते हैं क्योंकि it is very repetitive in nature. So this is how you deal with mapping, identifying sites in paper 1. Last question I believe. Brainstorm answers. I believe this was the most important question, but I believe the best is kept for the last. This is a technique. I swear, 2 बार मैंने मेंस दिया है. GS के लिए I have written a lot of answers, but for optional I haven't written a lot of tests.
like 2-3 FLT एट मैक्स ओवर टेन्योर ऑफ 2 years, वो भी बिल्कुल आराम से 4 घंटे में एक FLT लिख लिया, चाय पी के लिख रहे हैं. डोंट डू दिस, प्लीज राइट टेस्ट, प्लीज राइट टेस्ट, ठीक है. डोंट फॉलो माई स्ट्रैटेजी, एंड आई एम नॉट हियर टू से दैट ओ आई एम सम जीनियस और समथिंग, बट आई एम लाइक, मेरे से हिस्ट्री में आई हैड दैट इनर्शिया. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आई हैड एन इनर्शिया ऑफ राइटिंग टेस्ट in history optional. So how did I counter it? This brainstorming. I will give you a very good example. I gave this example earlier also. I'll do brainstorming on spot. Akbar's Rajput policy. Why? Why did he rely so much on Rajputs? अब मुझे क्या करना है? आई ब्रेनस्टॉर्म कैसे करते हैं? जस्ट आपके एक माइंड मैप, लाइक इफ़ यू हैव सीन शर्लॉक, उसमें वो एक माइंड कैसल बनाता है, माइंड वो बिल्डिंग जिसमें ना माइंड मैप बनाता है, जिसमें वो एक एक पॉइंट ना ऐसे ऐसे लाता है क्यूज एंड देन ही कंक्लूड्स. तो आपको वैसे ही करना है. अकबर्स राजपूत पॉलिसी, ट्रेड विद गुजरात, राजपुताना से जाना है. एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स, तोदरमल. मैरिटल अलायंसेस, डिप्लोमेसी टू काउंटर द रेडिकल फैक्शन इन हिज कोर्ट. लॉयल वॉरियर्स. फिर अकबर सेक्युलर व्यू, दिन इलाही. तो ऐसे मैंने आपके सामने 7-8 पॉइंट बना दिए. इसको थोड़ा हिस्ट्री ऑप्शन में थोड़ा डिस्क्रिप्टिवली लिखिए, ऐसे पॉइंट्स करने से मार्क्स नहीं मिलते. थोड़ा समझाइए, एग्जाम्पल दीजिए. देन हिस्टोरियोग्राफी, सतीश चंद्र, पार्टीज एंड पॉलिटिक्स इन मुगल इंडिया. He saw is from the point of administration. दूसरा, I believe, I am not able to recall, मुजफ्फर आलम कि तुरानी फैक्शन जो अकबर के कोर्ट में था उसको काउंटर करने के लिए राजपूत को उससे ही एलिवेटेड. तीसरा, नॉर्मन जीगलर, आई बिलीव, स्वॉर्ड आर्म ऑफ द मुगल एम्पायर. तो देखिए हिस्टोरियोग्राफी भी हो गई. अब मैंने ये कैसे किया? मुझे पता है अकबर राजपूत पॉलिसी में क्या हो रहा है, मैंने पढ़ा. अगेन इट कम्स डाउन टू दिस फैक्ट्स, ये जो मैंने आपको सारे बताए फैक्ट्स. लेकिन ये फैक्ट्स मैं याद कैसे कर पाया? बिकॉज आई हैड एन अंडरस्टैंडिंग. तो मेरे को जैसे ही मेरे दिमाग में आया राजपूत पॉलिसी, मेरे सारे पॉइंट्स मैंने एक माइंड मैप बना दिया और इनको पॉइंट्स के फॉर्म में बस लिखाया. स्पीड यू हैव टू इंश्योर, दैट इज योर एफर्ट, बट आई डू सजेस्ट प्लीज राइट योर टेस्ट एंड गेट देम इवेल्युएटेड. ट्रस्ट मी, गेट देम इवेल्युएटेड. मैंने नहीं किया था, आई माइट हैव बीन लकी, बट आई ब्रेनस्टॉर्म्ड ऑन ऑल द PYQs, all the tests I had been provided. I used to brainstorm on every question. Basically, the crux of brainstorming है, अगर कोई छोटा से छोटा टॉपिक भी हो, लेट्स जस्ट सपोज पल्लवा चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट, उस पर भी आप पे 7-8 पॉइंट होने चाहिए. अगर बहुत बड़ा टॉपिक है तो 15 पॉइंट्स होने ही चाहिए, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स एंड योर कोर कंटेंट. एंड हिस्टोरियोग्राफी भी, अगर बड़ा टॉपिक है तो जैसे मैंने अभी आपको 3 हिस्टोरियन ऐसे ही बता दिए. पल्लवा चालुक्य पे मुझे कोई हिस्टोरियन नहीं पता, इट इज़ ओके. द प्रोफेसर्स डोंट एक्सपेक्ट यू टू हैव सच डीप नॉलेज ऑफ सच ऑब्सक्योर टॉपिक्स, बट अगर बड़े टॉपिक्स हैं पे तो उस पर हिस्टोरियोग्राफी आप पे होनी चाहिए. सो दिस इज हाउ यू ब्रेनस्टॉर्म. फॉर एवरी टॉपिक यू हैव सर्टेन पॉइंट्स, सर्टेन एग्जाम्पल्स, सर्टेन हिस्टोरियंस. अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन. प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस. बहुत लोग हेजिटेट करते हैं, तो दिमाग में करिए और उसको पेन पे उतारिए, लिखिए एक पॉइंट. डिस्क्रिप्शन आपको खुद ही आ जाएगा, उसको दिमाग में अपने आप से बातें करते रहिए कि एबल एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट्स को मैं बड़ा कैसे कर सकता हूँ. दिस इज हाउ ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्क्स एंड इट डज वंडर्स. एंड बिफोर यू राइट योर एग्जाम ऑल्सो, आप टेस्ट भी लिखेंगे तो ऑलवेज स्टार्ट बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन. मतलब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, 10 से 20 सेकेंड में स्ट्रक्चर ब्रेनस्टॉर्म करिए, क्या पॉइंट्स डालने हैं. दैट विल कम फ्रॉम रिविजन, हिस्टोरियोग्राफी एंड जीपीटी के जो मैंने आपको समरीज बताया. इससे आपका कंटेंट आ जाएगा, बट उसको अरेंज करना ब्रेनस्टॉर्मिंग सिखाती है. क्योंकि हिस्ट्री में हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग ऑलमोस्ट एवरीवन हैज़ द सेम मटेरियल. व्हाई आर पीपल स्कोरिंग हाई एंड सम पीपल आर स्कोरिंग लो? बिकॉज डिमांड नहीं मीट हो पाती. डिमांड, अपने पॉइंट्स को अरेंज करना, डिमांड के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर करना इज व्हाट ब्रेनस्टॉर्मिंग हेल्प्स यू इन. तो बिफोर यू एक्चुअली राइट योर आंसर ऑल्सो इन द एग्जाम और एनी टेस्ट, ब्रेनस्टॉर्म अबाउट द स्ट्रक्चर, and trust me, brainstorming will do wonders to you. It will take you very far and it will help you in scoring good and also remembering a lot of content, in fact generating new points. That's it. I hope I have answered all your questions. If there are more questions, I'll be free to help. Thank you.